I guess we can start now. Hello everyone, a very good evening to all of you. I'm Tanushri and I would like to welcome all of you on behalf of MASH Project Foundation for this workshop on effective storytelling and social media for young change makers. Now before we start the workshop, I'll briefly introduce MASH Project to you. MASH Project Foundation is a social enterprise that is committed to building a global community of social change makers. We work with a range of organizations like corporates, nonprofits, civil society organizations, youth communities, government agencies, and policymakers to deliver high quality social impact through a diverse set of initiatives like community development programs, events, workshops, campaigns, CSR consulting, communications, media outreach, mentorship, monitoring and evaluation, and impact assessment. MASH is an organization that is committed to developing a platform for people, ideas, and actions to come together and synergize for creating a greater social impact. This event is co-organized by UNV, that is United Nations Volunteers. The UNV program contributes to peace and volunteerism worldwide. They work with the partners to integrate qualified and highly motivated and well-supported UN volunteers into development programming and promote the value and global recognition of volunteerism. Now coming to the workshop bit. As you all know, social media has become a very crucial part of our daily lives, and the impact of social media on our lives is totally undeniable, especially in the middle of the pandemic, where it has become the best possible platform to propagate ideas. Effective storytelling is a great way to influence one's mind, and also when channeled in the right direction, it can help in cultivating impactful thoughts. Through this workshop today, we endeavor to answer three basic questions. That is, how to build a powerful narrative using storytelling, what are the different mediums and channels to reach to a wider audience, and how can one sustain the message among your audience and social media followers. Now, without wasting much time, I'll quickly introduce our today's expert and speaker, Ms. Ridham Sachdeva. Hello, Ridham. Ridham is an independent communications consultant, and besides besides that, she voluntarily consults a few nonprofits on the social media strategies. She has a heartbeat for impact-driven initiatives and has previously worked with some great organizations like Goonj, Young India Foundation, and Give India. And she dreams to design the digital communication solutions to support such organizations to scale their impact. Ridham, over to you now. To start with, I just want to thank MASH Project for giving this opportunity to me, especially to Ashish who reached out and Tanushri who helped me in the whole process. Introductions are done, so I'll just hop on to the topic. Right. Tanushri, can you help me with the presentation, please? Yeah, sure. Just a minute, huh? Yeah. Hello everyone. मैंने एक छोटी सी PPT बनाई है actually. So I just wanted कि मैं जब बोलूं तो आपको वो चीज स्क्रीन पे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दैट हो सकता है कि पूरे डिस्कशन में ऐसी कुछ चीजें हों जो मैं आपको ना समझाऊं. Hello, am I audible? Yeah, I have switched off my video. Am I still visible to you? Yeah, we can hear you now. Roshni is saying today the electricity has been bad in Delhi. I know. All right, I'll move on to the PPT. Tanushri, can you help me with the next slide? Yeah, sure.
ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई सोशल मीडिया, एज इन, और व्हाई से पहले हम इस पर आते हैं कि व्हाट इज सोशल मीडिया। तो मैं आपको लिटरल डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगी, बट डेफिनेटली आई वुड वांट टू डिफाइन इट इन अ वे जिससे वी कैन अंडरस्टैंड कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बी इट अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन और अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन जनरल सोशल मीडिया पे होने का फायदा क्या है और वहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे समझे कि सोशल मीडिया जो है वो एक मीडियम है, जैसे कि न्यूज़पेपर होते हैं या टेलीविजन होता है या रेडियो होता है। तो ये सारे तरीके हैं आपको आपकी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। तो विद टाइम जो अलग अलग तरीके कंपनीज ने अपनाए सो दैट वो अपने मैसेज को अपनी ऑडियंस तक ले जा सके, आज के टाइम में एक और तरीका जो है वो है सोशल मीडिया का। तो पहले आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे। उन बिलबोर्ड्स का वहां होने का यही रीजन है कि ट्रैफिक जब वहां के रुकता है तो आपकी नजर उस पर जाती है और हो सकता है कि आपको वो चीज याद रह जाए। तो आज के टाइम पे एक तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो है आपके ट्रैफिक सिग्नल जैसे हैं, जहां पे आपकी ऑडियंस आके रुकती है। और इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को वहां पे कैप्चर करें। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ब्रांड जो है उसका सोशल मीडिया पर होना जरूरी है। अब कोई सोशल इम्पैक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जो है या फिर सोशल एंटरप्राइज है या फिर एनजीओ है, उसको सोशल मीडिया से क्या फायदा हो सकता है। तो बेसिकली हम हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया पे या तो सीएसआर से कनेक्ट हो सकती है या वॉलंटियर से कनेक्ट हो सकती है। तनुश्री, नेक्स्ट स्लाइड। I'll just ask in between so that I make sure that I'm audible. Am I audible? Yeah, you're audible. All right, great. तो अब आगे चलते हैं। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो देर आर लाइक लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। मैं सोशल मीडिया आपको बोलूँ तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। लिस्ट लिटरली बहुत लंबी है और ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है कि कहाँ पर आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए। अब वो प्लेटफॉर्म डिसाइड कैसे करते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स में से आज सिर्फ हम 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे जिनको आप मेजरली यूज करके 2 लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीएसआर्स और एक आपके वॉलंटियर्स। तो आज हम लिंक्डइन की, इंस्टाग्राम की और व्हाट्सएप की बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लिंक्डइन से शुरुआत करते हैं। पहले मैं इस बात पे आऊं कि आप लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ प्लेटफॉर्म लिंक्डइन क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में इस टाइम पे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। एज इन जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेजरली हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं। पर लिंक्डइन जो है उस पे शायद हम लोगों की प्रोफाइल्स बहुत जमाने से हैं, पर बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो उसको सीरियसली यूज नहीं करते, राइट। और लिंक्डइन एक ऐसी जगह है जहां पे लोग किसी ऑब्जेक्टिव से आते हैं। ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब ये है कि जब हम बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो मोर और लेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि या तो उनको एंटरटेनमेंट चाहिए या फिर वो अपना कुछ समय वहां पे बिताते हैं, राइट। पर जब लिंक्डइन की बात आती है तो लिंक्डइन लिटरली टाइम पास के लिए नहीं है। लिंक्डइन अगर कोई जेन्युइनली यूज करता है तो ही जेन्युइनली वांट्स टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स इन हिज इंडस्ट्री, राइट। तो वहां पे आपका जो एक तरह से आप बिजनेस बोल लीजिए या फिर नॉन प्रॉफिट की भाषा में नेटवर्किंग बोल लीजिए, वो चीज करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप वहां पे किसी से कनेक्ट होते हैं तो शायद ही आपको वहां कोई ऐसा मिलेगा जो टाइम पास के लिए आपसे कनेक्ट होगा, अदरवाइज दे एक्चुअली हैव एन ऑब्जेक्टिव इन माइंड टू कनेक्ट विद यू टू स्टार्ट विद, राइट। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले जो इवेंट्स हुआ करते थे, जैसे कि मार्केटिंग इवेंट्स हुआ करते थे,
जहाँ पे सारे मार्केटर्स एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, एंड दे यूज्ड टू गेट बिजनेस फ्रॉम देयर। और ऐसे ही नॉन प्रॉफिट की भाषा में मैं बोलूँ तो नेटवर्किंग इवेंट्स हुआ करते थे, जहाँ पे आप अलग अलग नॉन प्रॉफिट के लोगों से मिलते थे या CSR से मिलते थे। CSR इवेंट्स हुआ करते थे। Rhythm, we can't hear you. Actually. जमाने की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्पेशली जब से ये कोरोना आया है तब से ये जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो नेटवर्किंग के लिए हो, वो ऑनलाइन कनेक्टिविटी की जरूरत बहुत बढ़ गई है। तो लिंक्डइन को आप एक नेटवर्किंग इवेंट की तरह देख सकते हो, जहां पे यू आर गेटिंग इन टच विद CSR पीपल, probably having a conversation with them, जहां से उनको आपके इनिशिएटिव के बारे में पता चलता है, and probably after a while they end up supporting your initiative, right? अब हम आते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को हमें यूज कैसे करना है। तो जब हम यूज की बात करते हैं तो आपको दो तरीके हैं जिससे आप लिंक्डइन पे अपने इनिशिएटिव के बारे में बात कर सकते हैं। एक होता है लिंक्डइन का पेज, जैसे कि फेसबुक का पेज होता है, जहाँ पे आप रेगुलर अपडेट्स करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, एंड प्रोबेबली उनमें से कुछ लोग जो हैं वो आपके वॉलंटियर्स बन जाते हैं। ऐसे ही लिंक्डइन पे भी लिंक्डइन आपको ऑप्शन देता है अपना पेज बनाने का। और दूसरा तरीका है कि आप वो पेज ना बनाकर आप अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें। प्रोफाइल से मेरा मतलब है जो आपका खुद का अकाउंट है, आप उसको इस तरीके से बिल्ड करें ताकि जो CSR है वो आपको ऑब्जर्व करे, आपके टच में आए, और अल्टीमेटली प्रोबेबली आप उनके साथ एक CSR का प्रोजेक्ट कर सके। अब वो होता कैसे है? One sec, I'll show you. Okay. तो जब हम प्रोफाइल बनाने की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली ये बोल रहे हैं हेलो। Yeah. हेलो। Yeah, Rhythm, we can hear you. Tanushree, I'm joining from my laptop because I wanted to show something. Okay. ठीक है. Can I do the screen share? Yeah, sure. All right, awesome. Just a minute. All right. So हम बेसिकली बात ये कर रहे थे कि आप पेज पे ना जाकर आप अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कीजिए, वहां पे एक थॉट लीडर बनिए। वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप अपने पेज के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं तो लिंक्डइन पे जनरली आपकी पेज की जो रीच है वो इतनी जल्दी बिल्ड नहीं होती, राइट? पर जब हम एक थॉट लीडरशिप की बात करते हैं तो थॉट लीडर वो होता है जो अपनी इंडस्ट्री में उस टॉपिक के अराउंड अपने ओपिनियंस को शेयर करता है और लोग उसके ओपिनियंस को फॉलो करते हैं, राइट? तो मान लीजिए कि आप किसी एजुकेशन नॉन प्रॉफिट से जुड़े हुए हैं, आप उसके फाउंडर हैं या उसके टीम मेंबर हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप एजुकेशन इन जनरल एज अ कॉज की बात करें, लोगों से कनेक्ट करें, तो जेन्युइनली अगर उसको भी लोग पहचानने लगे। Rhythm, there's an issue with your audio, and we can't share your screen. We can't see your screen. You can't see my screen. No, just share it again. Is it visible now? Yeah, now we can see it. All right. So हम basically Could you just repeat what you said? Sure. Sure. Yeah. तो हम लिंक्डइन की बात कर रहे थे। होपफुली यू अंडरस्टूड कि हम पेज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हम लिंक्डइन पेज बना सकते हैं या फिर आप अपना प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं। सो हियर माय सजेशन इज कि आप पेज ना बनाकर अपना प्रोफाइल मेंटेन करिए
और वहां पे आप अपने आप को एक थॉट लीडर की तरह प्रेजेंट कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप एक एजुकेशन नॉन प्रॉफिट से जुड़े हुए हैं, आप उसके फाउंडर हैं या फिर उसके टीम मेंबर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इनिशिएटिव के बारे में बात करने के साथ साथ आप उस कॉज के बारे में बात करें, उससे रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस करें, ताकि लोग जेन्युइनली आपको सुनने के लिए, आप पे ट्रस्ट करने के लिए आपकी पोस्ट को पढ़े और अल्टीमेटली आपके इनिशिएटिव के बारे में जाने। तो सोशल मीडिया पे जनरली होता क्या है, अगेन बीट अ नॉन प्रॉफिट और अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जब हम किसी भी चीज को मार्केट करने की बात करते हैं, मार्केटिंग ऑल्दो नॉन प्रॉफिट टर्म्स में थोड़ा गलत टर्म हो जाता है, बट आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ। मान लीजिए कि आप अपने इनिशिएटिव के बारे में लोगों को बताते हैं, तो कई बार ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें लगता है कि सामने वाला बेच रहा है, राइट, और हम बहुत जल्दी उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। पर अगर आप इन जेन्युइनली किसी कॉज के बारे में फील करते हैं, कोई चीज आपके दिल के करीब है, एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप पढ़ते रहते हैं, आप जेन्युइनली कोई सुधार करना चाहते हैं, उसके अराउंड आपका एक इनिशिएटिव है, तो आप एजुकेशन के बारे में बात कीजिए। तो एक बार जब लोगों का ट्रस्ट आपके अंदर एज अ थॉट लीडर बनेगा, तो वो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आपके इनिशिएटिव के बारे में भी जानेंगे, राइट। यहाँ पे अब कुछ चीजें हैं, गोइंग फॉरवर्ड हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप लिंक्डइन पे एक थॉट लीडर की तरह अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने 3 चीजों में अपनी प्रोफाइल को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। यहाँ कुछ टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं एक एक करके आपको आगे लेके जाऊंगी, और साथ में मैं आपको लाइव लिंक्डइन पे दिखाऊंगी भी दैट व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। तो पहले यहाँ पे देखते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। जब हम बोल रहे हैं तो हम कवर फोटो की बात कर रहे हैं। तो आपकी प्रोफाइल दिखती कैसी है दैट मैटर्स। एज इन अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई आता है, कोई सीएसआर या कोई और इंसान आता है, तो उसको आपकी प्रोफाइल देख के ये मालूम हो जाना चाहिए कि आप कौन हैं। और उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आप अपनी प्रोफाइल में लिख सकते हैं या उसको किसी तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कवर फोटो एक ऐसी चीज है कि आप किसी की भी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले वो दिखेगा। दूसरी चीज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वो होता है जो आपके नाम के नीचे आता है, एज इन जहां आप लिख सकते हैं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं या आप इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जिससे थोड़ा ये पता चल जाए कि आप किस इनिशिएटिव के साथ इन्वॉल्व हैं। फिर हमारी बात आती है कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है वो चीजें जो लिखकर कोई भी लिंक्डइन पे आपको सर्च करेगा। एज इन मान लीजिए कि मैं एक सीएसआर हूँ और मुझे जो है वो एजुकेशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, और मुझे एक नॉन प्रॉफिट के साथ कनेक्ट करना है जो एजुकेशन स्पेस में काम करती है। तो और मैं आपके बारे में नहीं जानती, तो मैं लिंक्डइन पे क्या करूंगी, मैं लिंक्डइन पे लिखूंगी फाउंडर एजुकेशन एनजीओ, राइट। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि जो आपके कॉज से रिलेटेड शब्द होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एनजीओ हो गया, नॉन प्रॉफिट हो गया, सीएसआर हो गया, ये सारे शब्द जो हैं वो आपकी प्रोफाइल में अगर होंगे तो चांसेस हैं कि उस सीएसआर को आपकी जो प्रोफाइल है वो ऊपर ऊपर दिख जाएगी। और चौथा हमारा है फीचर्ड सेक्शन। ये मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। ऑलराइट, तो Tanushri, मेरा screen is visible, I'm audible, everything is fine? Yeah, everything is fine. All right. So अभी मैंने आपके साथ 4 चीजों की बात करी जब हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो एक हमने बोला कि हम कवर फोटो, वो इम्पोर्टेंट है। ये मेरा प्रोफाइल है, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे बिकॉज मुझे स्टार्टअप्स और सोशल एंटरप्राइजेस के साथ काम करना पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्लैरिटी दे दिया कि whom I am looking to connect with, right? और फिर हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन ये है, इंट्रोडक्शन जहाँ पे आप वो बताते हैं कि आप किस चीज में स्पेशलाइज करते हैं या प्रोफेशनली आप क्या काम करते हैं। तो जैसे मैं एक फ्रीलांस सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हूँ जो अगेन स्टार्टअप्स और सोशल एंटरप्राइजेस के साथ काम करती हूँ,
तो आपको ये पढ़ के थोड़ा सा आइडिया और हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आई ऑफर, राइट। ऐसे ही जब हम कीवर्ड्स की बात कर रहे थे, यानी कि ऐसे शब्द जिससे आपकी जो प्रोफाइल है वो दूसरों को आसानी से मिल जाए। तो जैसे मेरे लिए जो कीवर्ड्स हैं वो है सोशल मीडिया या सोशल एंटरप्राइजेस या नॉन प्रॉफिट या कम्युनिटी बिल्डिंग। तो देखिए मैंने यहाँ अपने इस सेक्शन में इस चीज को हाईलाइट किया है। मैंने सोशल मीडिया वर्ड यूज किया है, मैंने कम्युनिटी बिल्डिंग यूज किया है, मैंने ये स्टार्टअप्स और सोशल एंटरप्राइजेस वर्ड यूज किया है। तो बेसिकली अगर कोई भी ये ढूंढता है फ्रीलांस सोशल मीडिया, ऐसे करके कोई फ्रीलांसर को ढूंढने की कोशिश करता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको मेरी प्रोफाइल दिखेगी। अब हम आते हैं फीचर्ड सेक्शन पे। तो आपका फीचर्ड सेक्शन ये वाला होता है, जहां पे आप अपने इनिशिएटिव के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉग्स डाल सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली जिसको हम विंडो शॉपिंग बोलते हैं, मतलब ऐसे पिक्चर्स में देख देख के आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई डू, है ना। सो ये हमारा फीचर्ड सेक्शन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देती हूँ। ऑलराइट, सो आई केम टू नो अबाउट मिस्टर शशांक थोड़े टाइम पहले, एंड इनकी प्रोफाइल भी मैं आपको एग्जांपल की तरह दिखा देती हूँ। तो जैसे ही इज अ को-फाउंडर ऑफ एन एडटेक कॉल्ड कोनवी जीनियस, है ना। तो आप इनका कवर पिक्चर देखिए। कवर पिक्चर पे उन्होंने एक आइडिया दे दिया दैट एडटेक इज वन स्पेस ही वर्क्स है। यहाँ इंट्रोडक्शन में उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया कि वो कॉन्वे जीनियस की को-फाउंडर हैं। अब जब हम इनके अबाउट सेक्शन पे आते हैं, तो इन्होंने जैसे ये एडटेक सोशल एंटरप्राइज वर्ड यूज किया है, CSR एनजीओज वर्ड यूज किया है। तो बेसिकली अगेन कल को अगर कोई CSR जो है वो एडटेक स्टार्टअप को ढूंढना चाहे, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि जो शशांक का प्रोफाइल है वो ऊपर आ जाए। और ऐसे इनके फीचर सेक्शन में इन्होंने जैसे अपने ब्लॉग्स डिस्प्ले करे हैं, या कॉन्वी जीनियस जो उनका खुद का इनिशिएटिव है उसके बारे में बातचीत करी है, ताकि कल को लोग जब उनके पोस्ट से, उनके कंटेंट से इंटरैक्ट करके उनकी प्रोफाइल को चेक करें, उनको यहाँ पे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट। अब हम आते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के सेकंड सेक्शन में। हम यहाँ पे बात करेंगे राइट कनेक्शंस की। सो जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं, ऐसे लिंक्डइन पे कनेक्शंस होते हैं, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि फिलहाल, क्योंकि आपने, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो कुछ सालों पुरानी है और आपने उसको यूज नहीं किया है बहुत ज्यादा कभी भी, तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ अगेन कि आपके जो कनेक्शन होंगे वो फिलहाल इररेलेवेंट होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया था, मैं एक जर्नलिज्म कॉलेज से हूँ, तो उस टाइम जैसे फेसबुक पे मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों को ऐड किया, ऐसे लिंक्डइन पे मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों को ऐड किया। अब मैं उनके प्रोफेशन वाइज बात करूँ तो प्रोफेशनली दीज पीपल आर जर्नलिस्ट, वो लोग मीडिया इंडस्ट्री में। और मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ तो मेरी इंडस्ट्री उससे काफी अलग हो जाती है, राइट। मैं फ्रीलांस सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हूँ जो पर्टिकुलरली सोशल एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के साथ काम करना चाहती हूँ। तो प्रोफेशनली मुझे उनके साथ कनेक्शन रखना मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, राइट। तो मैंने अपने उन दोस्तों को अपनी लिस्ट से रिमूव कर दिया और मैंने उन लोगों को ऐड किया जिनसे या तो मुझे बिजनेस मिल सकता है या फिर जो मेरे पोस्ट के साथ इंटरैक्ट करेंगे। सिमिलरली एक इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक इम्पैक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप काम करते हैं, तो आपके लिए जो राइट कनेक्शंस हैं वो है CSRs और प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल्स फ्रॉम योर ओन इंडस्ट्री। CSRs आप जानते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हेड्स होते हैं, उनसे जुड़ना इसलिए जरूरी है ताकि वो आपको नोटिस करे लिंक्डइन पे, उनको आपके इनिशिएटिव के बारे में मालूम हो और कल को प्रोबेबली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले उनके साथ काम करने के लिए। प्रोफेशनल्स फ्रॉम योर ओन इंडस्ट्री इसमें आ सकता है कि हो सकता है कि आप एक एजुकेशन नॉन प्रॉफिट के फाउंडर हैं और आप दूसरे जो नॉन प्रॉफिट्स इसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, आप उनके फाउंडर से जुड़े।
या फिर जो फेलोज होते हैं, गांधी फेलोज होते हैं, पिरामिड फेलोज होते हैं, एक्यूमेन फेलोज होते हैं, बेसिकली ऐसे लोग जो डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और पर्टिकुलरली एजुकेशन स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको उनसे जुड़ना है। अब उनसे जुड़ने का रीजन ये है कि ये वो लोग हैं जो आपके साथ बातचीत करेंगे। एज इन आप जब कंटेंट शेयर करेंगे अपनी ऑडियंस के साथ, एज इन आप कोई पोस्ट डालेंगे, कुछ शेयर करेंगे, तो ये वाली कैटेगरी वो है जो आपके साथ इंटरैक्ट करेगी। जो CSR है वो आपके साथ शायद एंगेज नहीं करेंगे, वो आपको पोस्ट लाइक नहीं करेंगे, पर ये प्रोबेबिलिटी जरूर है कि वो आपको कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करें, और अगर उनको आपके इनिशिएटिव में इंटरेस्ट है तो वो आपको रीच आउट करेंगे, राइट। यहाँ पे एक बात ये भी करते हैं कि हम ये जो ऑडियंस है इसको ढूंढ कैसे सकते हैं। तो यहीं पे एक तरीका आपका ये है कि आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आप ही की इंडस्ट्री में है और लिंक्डइन पे ऑलरेडी एक्टिव है। तो जैसे मैंने अभी आपको इनकी प्रोफाइल दिखाई, तो अब मैं इनके कंटेंट में जा रही हूँ। तनुश्री, am I audible? All well? Yeah, all well, all well. All right. So मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो शशांक है वो एजुकेशन स्पेस में काम करते हैं, तो और ये लिंक्डइन पे एक्टिव भी हैं। तो मैं इनकी पोस्ट पे जाऊंगी और मैं ये देखूंगी कि इनकी पोस्ट के साथ कौन लोग इंटरैक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, CSR पार्टनरशिप, इंडियन बिजनेस लीड, क्लास सारथी, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, अर्थन, फाउंडर एंड CEO, और या देयर इज अनदर फाउंडर। ऐसे ही आप 2-3 पोस्ट अगर चेक करेंगे तो आपको वो लोग मिल जाएंगे जिनसे आपको भी कनेक्ट होना चाहिए इनकेस आप एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप एक बारी देखिए, यहाँ भी आपको कुछ CSR के लोग मिल जाएंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स मिल जाएंगे, कुछ फेलोज भी मिल जाएंगे। Like this particular person works in domain of women's financial inclusion, तो हो सकता है कि probably she is the one you want to connect with। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है उन लोगों से कनेक्ट होने का या उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का जिनसे आपको कनेक्ट करना चाहिए। दूसरा और सिंपल तरीका है, सीधा तरीका है कि आप यहाँ जाके सर्च कीजिए फाउंडर एजुकेशन NGO, तो यहाँ आपको कुछ प्रोफाइल दिख जाएंगी। जैसे ये एक प्रोफाइल है या ये एक प्रोफाइल है। अगर आपको लगता है कि इनसे आपको कनेक्ट होना चाहिए, आप इनके साथ फ्यूचर में प्रोबेबली काम कर सकते हैं, तो आप इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सिमिलरली आप CSRs को भी सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारी प्रोफाइल्स आ गई। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये भी है, आपको ये मेक श्योर करना है कि वो इंसान जो है वो लिंक्डइन पे एक्टिव है, और वो आपको पता चलता है उनकी एक्टिविटी से। मतलब अगर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज लिस्टेड है, इसका मतलब वो लिंक्डइन अक्सर खोलते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। अगर ये वाला सेक्शन किसी की प्रोफाइल से मिसिंग है तो इसका मतलब ये है कि वो लिंक्डइन यूज नहीं करते। तो ऐसे लोगों को आपको ऐड नहीं करना है, इवन इफ दे आर फ्रॉम CSR और आर फाउंडर्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर वो लिंक्डइन पे आएंगे ही नहीं तो आपकी उनसे बातचीत होना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए आपको उन्हीं लोगों से इंटरैक्ट करना है जो लिंक्डइन पे एक्टिव होते हैं। आगे अब हम आएंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपको लिंक्डइन पे ध्यान रखनी है। जैसे आपको पोस्ट डेली करना है, और उसका रीजन ये है कि धीरे धीरे जैसे लिंक्डइन पे भीड़ बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करना शुरू करेंगे, तो आपका जो कंटेंट है उसका भीड़ में खो जाने का बहुत चांसेस हैं। इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन अपने कनेक्शंस के साथ करते हैं, जिससे आपकी जो रीच है वो भी बढ़ती रहे और आपकी जो पॉसिबिलिटी है दूसरे लोगों से कनेक्ट करने की या फिर CSR के साथ कनेक्ट करने की वो भी बढ़ती रहे। साथ ही में आपको कमेंट्स के रिप्लाई करने हैं। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे थे
कि पोस्ट्स पे बहुत सारे कमेंट्स थे, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके पोस्ट पे कोई कमेंट करता है तो आप उसका जवाब दें, राइट। तो जैसे यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया कि आप कमेंट्स का रिप्लाई करें, उससे आपका जो पोस्ट है वो भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, और इन जनरल ऑल्सो आपकी जो रीच है, आपका जो कनेक्शन बिल्ड करने का इरादा है, वो भी सामने वाले को समझ आएगा और आपकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ आपको ये इंश्योर करना है कि अपना पोस्ट शेयर करने के साथ साथ आप दूसरे लोगों के पोस्ट पे शेयर कमेंट्स करें या फिर उनसे एंगेज करें। यहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप नीचे लिख दें थैंक यू फॉर शेयरिंग या दिस इज वंडरफुल, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। जेन्युइनली उनके पोस्ट को पढ़िएगा, और अगर आपको कोई ओपिनियन है उस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको शेयर कीजिएगा। उससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए मैं एक CSR हूँ, आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, और एक और फाउंडर हैं नॉन प्रॉफिट के जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, पर आप और मैं कनेक्टेड नहीं है। अगर आपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर की पोस्ट पे कमेंट किया, तो हो सकता है मैं जो एक CSR हूँ वो आपका कमेंट देख लूँ और उसके बाद मैं आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूँ। तो बेसिकली आपकी जो विजिबिलिटी है वो इस चीज से बढ़ जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपना कंटेंट शेयर करने के साथ साथ दूसरों के कंटेंट पे भी एंगेज करें। अब हम आते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल हम करेंगे अपने वॉलंटियर्स और कंट्रीब्यूटर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। अभी ऊपर जैसे हमने लिंक्डइन में बात करी कि आप अपने जो ऑडियंस है या जो राइट कनेक्शन है उनको कहाँ खोज सकते हैं, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे भी कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप खोज सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको कनेक्ट करना चाहिए। और इंस्टाग्राम के मामले में स्पेशली सबसे पहला एडवाइस मेरा यही है कि नंबर्स के पीछे मत भागिए। नंबर्स फॉल्स भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं सोशल मीडिया पे कि किसी ब्रांड के मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, पर जब आप उनकी एंगेजमेंट देखेंगे यानी कि लाइक्स और कमेंट्स देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो जो फॉलोअर्स हैं वो रेलेवेंट नहीं है, उन्होंने बस या तो वो फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं या फॉलो करने के लिए लोगों ने फॉलो किया है। तो अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि वो इंसान आपके इनिशिएटिव से जुड़े, आपका वॉलंटियर बने, वो ऑब्जेक्टिव कभी फुलफिल नहीं होगा अगर आप सिर्फ नंबर्स के पीछे भागेंगे। इसलिए आपके फॉलोअर्स की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। क्वालिटी से मेरा मतलब है सही लोगों से कनेक्ट करना हमारा बहुत जरूरी है। अब ये देखते हैं कि आपको वो लोग कहाँ और कैसे मिल सकते हैं। एक तरीका है कि अगेन आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो आप ही के इनिशिएटिव से मिलते जुलता कोई और इनिशिएटिव है या एजुकेशन सेक्टर में कोई और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है, आप उनके पोस्ट को चेक कर सकते हैं। तो वहां पे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जेन्युइनली उस कॉज से या उस नॉन प्रॉफिट से जुड़े हुए हैं। तो एटलीस्ट हमें इससे ये पता चल जाता है कि इस इंसान ने यहाँ पे कमेंट किया है तो ये इंसान सोशल सर्विस में या फिर एजुकेशन स्पेस में इंटरेस्टेड है, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि वो इंसान हमारे लिए सही है या नहीं है। दूसरा तरीका अपनी ऑडियंस ढूंढने का ये है कि आप हैशटैग्स यूज कर सकते हैं। सॉरी, हैशटैग्स इंस्टाग्राम पे अगर आप हैशटैग डालेंगे हैशटैग एनजीओ इंडिया, तो आपको बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे जो अलग अलग लोगों ने किए होंगे। हो सकता है वो किसी नॉन प्रॉफिट ने किए हो सकता है वो किसी इंडिविजुअल ने किए हो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटियर है। तो वहां से भी आपको उन लोगों का पता चल जाता है जो लोग इस स्पेस में ऑलरेडी इस कॉज के बारे में बातचीत कर रहे हैं और प्रोबेबली वो आपके इनिशिएटिव में भी इंटरेस्टेड होंगे। ऐसे ही अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में सर्व करते हैं, यानी आपका एनजीओ जो है वो सिर्फ दिल्ली में काम करता है, तो आप कुछ ऐसे हैशटैग्स भी ढूंढ सकते हैं जैसे कि एनजीओ दिल्ली। तो प्रोबेबिलिटी है कि वहां जो आपको पोस्ट मिलेंगे वो जिन लोगों ने किए होंगे वो लोग दिल्ली के ही होंगे,
तो कल को अगर आपको वॉलंटियर्स चाहिए तो आप दिल्ली के वॉलंटियर से कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही यही चीज आप इनिशिएटिव वाइज भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आप हैशटैग एजुकेशन एनजीओ करके ढूंढेंगे तो आपको वो पोस्ट मिल जाएंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड है या उन लोगों ने करे हैं जो इस स्पेस में ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, राइट। अब हम आते हैं कि जब आप अपनी ऑडियंस को पहचान लेते हैं कि वो ऑडियंस कहाँ है और कौन है, अब बात आती है कि आप उनसे कनेक्ट कैसे करते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे डीएम स्ट्रैटेजी की। डीएम स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, और फेसबुक की भाषा में मैं आपसे कहूँ तो जब आप पर्सनली किसी को जाके पर्सनल मैसेज करते हैं उसी को इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज यानी कि डीएम बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकलिटी को समझे। जब आप किसी से डायरेक्ट मैसेज में बात करते हैं तो इंस्टाग्राम को ऐसा लगता है, उसके एल्गोरिदम को, यानी जो उसका सिस्टम है इंस्टाग्राम को, उसको ऐसा लगता है कि आप उस इंसान के साथ दोस्त हैं। अगर आप कॉन्वर्सेशन करते हैं डायरेक्ट मैसेज में तो इंस्टाग्राम जो है वो आपको इंसान का दोस्त समझता है, और ऐसा होता है कि आपकी जो पोस्ट है वो उस इंसान की फीड पे रेगुलरली दिखने लग जाती है, राइट। तो उस हिसाब से किसी और तरीके की बजाय किसी को जाके पर्सनल मैसेज करना फायदेमंद होता है। और उससे भी बड़ा फायदा यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि जो लोग आप तक नहीं पहुंच रहे हैं आप उन तक पहुंचे। जैसे यहाँ पे हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जो एजुकेशन स्पेस में इंटरेस्टेड हैं। अब आप उन लोगों को जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने इनिशिएटिव का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और साथ में उनको एक वॉलंटियर फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये हमारा वॉलंटियर प्रोग्राम है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इससे जो रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान आपको रिप्लाई करेगा, उसका ध्यान आपके इनिशिएटिव पे जाएगा, वो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, राइट। तीसरा पॉइंट है कि आपने जब उनसे कनेक्ट कर लिया, आपकी बातचीत हो गई, तो आप उनको एंगेज कैसे करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो वॉलंटियरिंग जो है वो जनरली हम कनेक्ट करते हैं ऑन ग्राउंड चीजों से, यानी कि किसी नॉन प्रॉफिट का इवेंट है तो आपको वॉलंटियर्स चाहिए, राइट। कोई ऐसा नॉन प्रॉफिट है जो बच्चों को पढ़ाता है तो आपको वॉलंटियर्स चाहिए उन नॉन प्रॉफिट्स के नॉन प्रॉफिट में जाके उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अपने वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नॉन प्रॉफिट्स की टीम जो है वो जनरली छोटी होती हैं, काम बहुत होता है और बहुत सारे ऐसे आइडियाज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप अक्सर मतलब अपनी टीम में उसको पूरा नहीं कर पाते। और ये वो जगहें भी हैं जहाँ पे आप अपने वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक नॉन प्रॉफिट का एग्जांपल देती हूँ। यंग इंडिया फाउंडेशन जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ पॉलिटिक्स के लिए काम करता है, और इनकी जितनी भी सोशल मीडिया की टीम है ये सारी टीम जो है वो वॉलंटियर बेस्ड है। और ये सिलसिला कुछ ऐसे शुरू हुआ था कि जब यंग इंडिया फाउंडेशन ने खुद से कुछ पोस्ट डालने शुरू किए थे, जो छोटी सी शुरू में वॉलंटियर्स की टीम बनी थी, जो फाउंडर थे और 2-3 लोग और थे, उन लोगों ने जब पोस्ट डालने शुरू किए तो उनको रिस्पॉन्स आने लगा कि आपका जो कॉज है हम उससे रिलेट करते हैं, हमें इसमें इंटरेस्ट है, हमें इससे जुड़ना है। और उस समय वॉलंटियर्स को ऑन ग्राउंड ऑफर करने के लिए यंग इंडिया फाउंडेशन के पास कुछ खास नहीं था, क्योंकि उनका ज्यादा जो ऑपरेशन है, ज्यादा जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी है वो रूरल एरियाज में होती है। पर सोशल मीडिया एक ऐसा स्पेस था जहाँ पे हमें लोगों की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के इंटरेस्ट पूछने शुरू किए। तो कुछ लोग जो थे वो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी अच्छी बनाते थे, कुछ डिजाइनिंग अच्छी करते थे, कुछ ब्लॉग्स अच्छे लिखते थे, कुछ मैनेजमेंट अच्छा करते थे। तो ऐसे ही धीरे 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 करते हुए एक वॉलंटियर्स की एक ऐसी टीम बन गई जो आज के टाइम पे इंडिपेंडेंटली सोशल यंग इंडिया फाउंडेशन का सोशल मीडिया हैंडल करती है। ऐसे ही यंग इंडिया फाउंडेशन से 2-3 लॉयर्स जुड़े हुए हैं जिनसे कभी जरूरत पड़ने पर YIF जो है वो लीगल एडवाइस ले सकती है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जो वॉलंटियरिंग है उसको आप सिर्फ ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज से मत जोड़िए,
आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपको अपने डे टू डे मैनेजमेंट में कहाँ पे लोगों की जरूरत है और कहाँ पे और जो आपके वॉलंटियर्स हैं, जो लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं। उन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर पाएंगे जो अभी टीम छोटी होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं हो पाती। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्लेटफॉर्म पे, जो कि है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप भी हम वॉलंटियर से कनेक्ट करने के लिए करेंगे, पर यहाँ पे हमें समझने की जरूरत ये है कि व्हाट्सएप जो है वो एक बहुत ही पर्सनल प्लेटफॉर्म है। मतलब आप हर किसी को नंबर नहीं देते, और ये बहुत इरिटेटिंग होता है कि बार बार किसी ग्रुप में या कोई इंसान आपको बार बार मैसेजेस भेजता है, राइट। पर व्हाट्सएप को हम यूज इस तरीके से कर सकते हैं जहां पर आप अपनी वॉलंटियर्स की एक क्लोज नेट कम्युनिटी बनाएं, एज इन एक छोटा सा ग्रुप जिसमें वही लोग शामिल हो जो आपके इनिशिएटिव को के बारे में ऑलरेडी जानते हैं और आपके साथ जुड़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, राइट। तो उसको मेंटेन करने का तरीका ये है कि जैसे आप फेसबुक पे अपना पोस्ट शेयर करते हैं या लिंक्डइन पे इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, तो वहां से आप लोगों को बताना शुरू कीजिए कि व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे हम वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कीजिए, राइट। तो अगर वो इंसान आपका व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेता है तो आपको ये भी पता चल जाता है कि इतनी सारे फॉलोअर्स की भीड़ में से आपके सीरियस वाले वॉलंटियर्स कौन से हैं, क्योंकि उसने वो हिम्मत की है कि वो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को देखे, जो बहुत इरिटेटिंग होता है किसी भी इंसान के लिए, राइट। और अब दूसरी बात यह है कि जब एक बार वो इंसान आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़ गया है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो उसको छोड़ के ना जाए, और उसके लिए व्हाट्सएप को आपको जब जरूरत पड़े तभी इस्तेमाल करना है। यानी आपको टाइमली मैसेजेस भेजने हैं, आपको डेली बेसिस पे वहां पे अपडेट्स शेयर करने की जरूरत नहीं है, उसको दूसरा फेसबुक बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ अर्जेंट है, कुछ वॉलंटियर्स की एकदम से जरूरत है, तो ऐसे अर्जेंट केसेस के लिए ही व्हाट्सएप को आप इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो अर्जेंट सिचुएशन है उससे आप जल्द से जल्द निकल सके, और आपको अगर क्विकली वॉलंटियर्स की जरूरत है तो आपके वॉलंटियर्स आपके पास हाजिर हो, राइट। तो अब हमने प्लेटफॉर्म्स की बात की थी कि हम लिंक्डइन, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे क्यों और कैसे लोगों से जुड़ सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उनसे जुड़ने के बाद आप उनसे बातचीत क्या करेंगे, आप उनके साथ शेयर क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग में मैंने इस चीज को भी कुछ 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश की है, जिससे हम ये समझ पाए कि आपके पास कंटेंट का वैरायटी क्या हो सकता है, एज इन आप एक इंफॉर्मेशन को कैसे अलग अलग तरीकों से, अपने इनिशिएटिव के बारे में कैसे अलग अलग तरीकों से अपने वॉलंटियर्स या सपोर्टर्स को बता सकते हैं। ऐसे ही जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें कौन से फीचर्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपने उस इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो आपको फॉलो करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग सोशल मीडिया। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने देखे थे, मैं आपको एक एक करके एग्जांपल बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑन ग्राउंड स्टोरीज की। ऑन ग्राउंड स्टोरीज जो है, मैंने यहाँ पे बेसिकली कुछ कुछ नॉन प्रॉफिट्स के एग्जांपल, सोशल मीडिया के एग्जांपल्स पिक किए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज आप नोट कीजिएगा, और लास्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा कंटेंट वैरायटी है ऑन ग्राउंड स्टोरीज, यानी कि वो स्टोरीज जो आपके इनिशिएटिव से जुड़ी हैं। आप अगर मान लीजिए बच्चों को सपोर्ट करते हैं या महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, तो उनसे जुड़ी जो स्टोरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्वॉल्व जो नॉन प्रॉफिट है, उनने बहुत ही अच्छे से ये एक स्टोरी शेयर किया है एक टीचर के बारे में, राइट। इसी तरीके से दूसरा तरीका है जिससे आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, वो है इम्पैक्ट रिपोर्ट्स। सो 1 सेकेंड जी।
तो यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल देखा कि कैसे जो गूंज है उनका ये कैंपेन चल रहा था राहत का। तो उन्होंने कुछ समय बाद उसकी जो रिपोर्ट है कि उन्होंने कितने लोगों को मदद किया, किस तरीके से मदद किया, वो सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो यहाँ हाइलाइट्स बना के उन्होंने शेयर किया। तो इससे होता ये है कि आपकी जो सपोर्टर्स हैं या डोनर्स हैं उनको ये भरोसा मिलता है कि उन्होंने जो पैसे डोनेट किए थे या जो हेल्प प्रोवाइड की थी उसका आपने कैसे इस्तेमाल किया और उससे क्या लोगों को ऑन ग्राउंड मदद मिली। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप अपने इनिशिएटिव के बारे में लोगों को बता सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा तरीका है सपोर्टर्स टेस्टिमोनियल्स का, राइट। सपोर्टर्स टेस्टिमोनियल से मेरा मतलब है कि आप उन लोगों की कहानी को सामने लेकर आए जो आपको आपके इनिशिएटिव को चलाने में मदद करते हैं, यानी कि आपके वॉलंटियर्स। तो मान लीजिए कोई ऐसा वॉलंटियर है जो आपके साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने आपको काफी मदद की है किसी कैंपेन के लिए, फंड रेज करने के लिए। तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, उनकी जर्नी बता सकते हैं। इससे एक फायदा ये भी होता है कि जो आपके दूसरे सपोर्टर्स या वॉलंटियर्स हैं उनको ये भरोसा मिलता है कि एक इंसान अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ कह रहा है जो कि एक वॉलंटियर है, तो हो सकता है कि जेन्युइनली ये ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्राउंड लोगों की मदद कर रही हो, राइट। तो उससे एक ट्रस्ट बनता है। अब हम आते हैं अपने चौथे कंटेंट वैरायटी पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके कॉज के अराउंड जनरल नॉलेज की। जैसे हमने लिंक्डइन में भी बोला कि हर समय आपको अपने इनिशिएटिव के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि लोगों को लगे कि आप बहुत ज्यादा उस चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं, जिससे लोग जनरली उस चीज के बारे में सुनना नहीं चाहते। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जिस कॉज के लिए काम करते हैं उस कॉज के अराउंड आप जनरली बात कर सकते हैं। जैसे यंग इंडिया फाउंडेशन जो है वो यूथ पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, और ये एक ऐसा मुद्दा था जो उन्होंने पिक किया और उसके अराउंड उन्होंने एक सोशल मीडिया का पोस्ट बनाया। तो इससे ये आपके फॉलोअर्स को मालूम चलता है कि आप अपने कॉज से रिलेटेड देश भर में जो चल रहा है उसके बारे में आपको मालूम है और उसके ऊपर आपका कुछ ओपिनियन है। तो इसके बारे में अगर आप इस पोस्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें यंग इंडिया फाउंडेशन के इनिशिएटिव के बारे में कुछ नहीं लिखा, पर ये जो टॉपिक है वो उनके कॉज से रिलेटेड है और इसलिए उन्होंने इसको शेयर किया। अब हम आते हैं कि कैसे आप अलग अलग टूल्स को यूज करके जो है वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि आपका जो पोस्ट है वो दिखेगा कैसे, है ना। तो एक सिंगल इमेज भी हो सकती है जो कि बहुत कॉमन है, हम लोग अक्सर यूज करते हैं। एक स्माइलिंग इमेज, जैसे एंथिल क्रिएशंस जो है वो बच्चों के साथ काम करता है, उनके लिए प्लेग्राउंड्स बनाता है। तो उन्होंने बच्चों की प्लेग्राउंड में एक फोटो शेयर करी। ये क्योंकि सोशल मीडिया पे जो फोटोज हैं वो सबसे ज्यादा हमें अट्रैक्ट करती हैं, हम पढ़ने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। इसलिए ये जो खूबसूरत सी तस्वीरें होती हैं, ऑन ग्राउंड की जो तस्वीरें होती हैं, वो बहुत अच्छा कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी फोटो इस्तेमाल की और यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये एक तरीका है अपने ऑडियंस को अपने इनिशिएटिव के बारे में बताने का। एक और तरीके से जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं वो है कैरोसेल। कैरोसेल होता है जब आप एक साथ बहुत सारी फोटोज को शेयर करते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक सिंगल इमेज देखा और यहाँ पे अब कैरोसेल है, कैरोसेल इसको बोलते हैं। ये ऑप्शन पर्टिकुलरली आपको इंस्टाग्राम पे मिलता है या लिंक्डइन पे भी आप ये चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यंग इंडिया फाउंडेशन ने क्या किया है कि अपने ब्लॉग के बारे में उन्होंने पिक्चर्स यूज करके एक स्टोरी बताई है और लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो लिंक है वो बायो में है। तो ये स्टोरी टेलिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने डेटा और फोटोग्राफ्स को यूज करके जो हाईलाइट पॉइंट्स थे इस टॉपिक के अराउंड वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किए।
अब आता है लाइव सेशंस। तो लाइव सेशंस जो हैं वो आप ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। लिंक्डइन पे पॉसिबल है, इंस्टा पे पॉसिबल है, फेसबुक पे पॉसिबल है। तो लाइव करने का तरीका, लाइव करने का फायदा ये है कि आप डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से टच में आ सकते हैं। एज उनको मालूम होता है कि जो लोग इस इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, वो लोग कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो सुधांशु है, यंग इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर, वो उन्होंने एक टॉपिक के बारे में कि हाउ डू यू स्टे पॉलिटिकली एक्टिव, इस टॉपिक के बारे में अपनी ऑडियंस से बातचीत करें। तो इसमें लोग आपसे लाइव जुड़ते हैं, आपसे सवाल करते हैं और आप उसी समय उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं, हम कनेक्शन की बात करते हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने का। एक और तरीका है स्टोरीज में पोल्स और क्वेश्चंस का। आप सब इंस्टाग्राम स्टोरीज के बारे में जानते होंगे। तो स्टोरीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपकी एंगेजमेंट होती है वो आपकी पोस्ट से ज्यादा स्टोरीज में होती है। और उसका रीजन ये है कि आपकी स्टोरीज में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो लोगों को प्रॉम्प्टली एक्शन लेने के लिए नज करते हैं। एज इन जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यंग इंडिया फाउंडेशन ने एक स्टोरी किया और वहां पे उन्होंने ये क्वेश्चन फीचर को यूज करते हुए पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो कई बार ऐसा होता है, दिस इज अगेन ह्यूमन टेंडेंसी, कि जब आप इस स्टोरी को देखेंगे, है ना, आप किस ना किसी बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ये पोल का एक एग्जाम्पल है, आप या तो यस करेंगे या नो करेंगे। आप कोई सवाल पूछा गया है तो आप जल्दी से कुछ टाइप कर देंगे। तो जो आपका एंगेजमेंट रेट है वो स्टोरीज में पोस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा एरिया है इंस्टाग्राम पे स्पेशली अपनी ऑडियंस से इंटरैक्ट करने का। अब हम आते हैं कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, नो मैटर आप क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, है ना। ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं। तो एक तो जैसे हमने लिंक्डइन में भी बात करी थी कि आपको रेगुलर पोस्ट करने की जरूरत है। और उसका रीजन यही है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो वॉलंटियर्स हैं, वो एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे होंगे, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। कोई भी इंसान सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं होता, कम से कम 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स पे होता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट इन जनरल हमारा जो माइंड स्पेस है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है, वो बहुत कम होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि किसी ने अगर आपका पोस्ट देखा भी तो वो उसके बारे में बहुत जल्दी भूल जाए, है ना। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप रेगुलरली लोगों से बातचीत करें, रेगुलरली पोस्ट करें। दूसरा चीज जो ध्यान में रखनी है वो है स्पेशियस राइटिंग। स्पेशियस राइटिंग से मेरा मतलब है कि जहां भी आप टेक्स्ट लिखते हैं सोशल मीडिया पे, उसको इस तरीके से लिखिए कि वहां पे वाइट स्पेस बहुत हो, ताकि वो पढ़ने में आसान लगे। क्योंकि जहां भी हम इंटरनेट पे लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, हम उसको बहुत रेयरली पढ़ते हैं। और कोई चीज अगर हमें देखने में साफ सुथरी या स्पेशियस लगती है तो हम उसको अक्सर पढ़ लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है CTA, यानी कि कॉल टू एक्शन। तो सोशल मीडिया पे आपका होना या किसी इम्पैक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन का होना, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होगा आपका। तो आपको हर बार अपनी ऑडियंस को ये बताना है कि आपने उनको ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी, राइट। आपने अगर अपने इनिशिएटिव के बारे में उनको बताया है, अगर उनके साथ ऑन ग्राउंड स्टोरी शेयर करी है या उनके साथ टेस्टिमोनियल शेयर किया है, तो आपको उनको बताना है कि उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद वो क्या करें, है ना। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपकी कोई एक्शन नहीं लेगा। तो वो एक्शन को प्रॉम्प्ट करने के लिए आपको उनको स्पेसिफिकली बताना होगा कि आप, ये हमारा इनिशिएटिव है, ये कैंपेन है, आप जाके कंट्रीब्यूट कीजिए। आपको बताना होगा कि हमारी वॉलंटियर मीट हो रही है, आप उसके लिए जाके रजिस्टर कीजिए। आपको बताना होगा कि हमें अभी लोगों को मदद करने के लिए 10 kg चावल की जरूरत है, वो अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। वो आपको अपनी ऑडियंस को बताना होगा।
क्वाइट लिटरली अगर आप अपने पोस्ट में कॉल टू एक्शन को मिस कर देते हैं तो आपकी उस पोस्ट का कुछ खास मतलब नहीं रह जाता, राइट? तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक पोस्ट दिखा रही हूँ जो हम बात कर रहे थे कि स्पेशियस राइटिंग होनी चाहिए। देखिए इन्होंने, ये पढ़ने में आसान है, मतलब मुझे ऐसे क्लटर्ड नहीं लग रहा है ना, तो बहुत अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और जो हम CTA की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली लिखा है डोनेट, सपोर्ट एंड फाइट फॉर द कॉज। तो जब मैंने ये इंफॉर्मेशन पढ़ा जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एंटल जो है ये प्ले इन बॉक्स के थ्रू बच्चों को प्लेग्राउंड को एक्सपीरियंस उनके घरों में दे रही है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी। और उसका मैं क्या करूँ, तो जब मैं उसको नीचे देखूंगी तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि डोनेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, अपनी ऑडियंस को ये बताना बहुत जरूरी है कि आपने उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों की है। अब जब आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर चुके हैं, आप ये जान चुके हैं कि आप उनके साथ टच में कैसे रहेंगे, हम ये बात करते हैं कि एक बार जब कोई वॉलंटियर आप में इंटरेस्ट दिखाता है, आपकी इनिशिएटिव में इंटरेस्ट दिखाता है, तो उसके साथ हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बस एक ही चीज, एक ही कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, जो कि है एंगेजमेंट। में रहना है ना, आपको उनको बार बार उनकी नजरों में आना है ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें। और इसके कुछ तरीके हैं, जैसे एक तरीका ये है कि अगर कोई भी वॉलंटियर जो है वो आपके पोस्ट पे कमेंट करता है, आपके इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करता है, राइट, आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, इन जनरल ऑल्सो आई एम श्योर कि जब भी आप जिस भी इनिशिएटिव से जुड़े हैं उसके बारे में अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता होगा या उसको सपोर्ट करता होगा, जेन्युइनली दिल से आप उसको थैंक यू बोलते होंगे। तो वही चीज सोशल मीडिया पे भी लेकर आएगा। उनको बताइए कि आप शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपके इनिशिएटिव के बारे में जाना और उसको सपोर्ट किया, राइट। एक तरीका है कि आप रीशेयर कर सकते हैं उनकी स्टोरीज को। तो कई बार ऐसा होता है कि खासकर इंस्टाग्राम पे लोग जो है अगर उनको कुछ पसंद आता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो आपकी पोस्ट को शेयर कर देते हैं, है ना। या फिर कोई वॉलंटियर है जिन्होंने आपके किसी इवेंट में आपको हेल्प किया, तो उसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल के अपने दोस्तों को बताया, तो उनके जो पोस्ट है उनको रीशेयर कीजिए, उनको अपने पेज पे फिर से डाल के उनको थैंक यू बोलिए। इससे उनको भी ये मालूम होगा कि आप उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। तीसरा है हाईलाइट देयर एफर्ट्स। ऊपर जैसे अभी हमने टेस्टिमोनियल्स की बात की, राइट, तो कुछ वॉलंटियर्स ऐसे होंगे जो, अगर आप मान लीजिए कुछ 10 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ वॉलंटियर्स आपके ऐसे हैं जो आपके साथ कुछ 7-8 साल से जुड़े हुए हैं और आपकी उन्होंने बहुत मदद की है, तो स्टार वॉलंटियर्स जिसको हम कभी कभी बोलते हैं, तो आप अपने स्टार वॉलंटियर्स के एफर्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। आप बता सकते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर इंसान ने आपको अपना ऑब्जेक्टिव, अपना इनिशिएटिव का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प किया। अगेन सिमिलरली जो हम टेस्टिमोनियल्स की बात कर रहे थे, ट्रस्ट बनाने के लिए, अपने बाकी डोनर्स के बीच में ट्रस्ट बनाने के लिए आप अपने कुछ वॉलंटियर्स का जो है वो टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या था, किस वजह से उन्होंने आपके इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। तो जब इसको दूसरे लोग पढ़ेंगे तो उनको भी आपके इनिशिएटिव के बारे में पता चलेगा और उनका भी भरोसा बंधेगा। That's it actually. So I'm really looking forward to questions, and I'm again kind of sorry for all the hodgepodge. और कहीं भी confusion है तो please बताइए, I'm here as long as you want me to be. Guys, All right. hi. Guys, if you have any questions, you can drop it in the question box, Q&A box, or in the chat. Then we have a few questions. So Meghna is asking Alright. why is cover picture so important, and can we update it through an app? Through an app. Yeah. All right. Hi Meghna.
कवर पिक्चर इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे पहले इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो इट इज लाइक कि कोई आपके पास आया तो उसको सबसे पहले क्या दिखेगा। तो अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं तो आपका वो ऊपर का जो हिस्सा है वो सबसे पहले दिखेगा, है ना। तो जनरली हम किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। आप मतलब इंफॉर्मेशन को स्किम करते हो इंटरनेट पे और आपको वो काम की नहीं लगती तो आप ड्रॉप कर जाते हो। तो विद इन सेकेंड अगर आपको बताना है किसी को भी कि आप कौन हो या आप क्या करते हो या किस इनिशिएटिव के लिए आप काम करते हो, तो वो एक बहुत अच्छी जगह है अटेंशन कैप्चर करने के लिए, क्योंकि वहां ध्यान जाता ही जाता है। और सोशल मीडिया पे प्योरली अगर मैं बिजनेस टर्म्स में या वैसे आपको बोलूं तो अटेंशन कैप्चर करना इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव। वही करने के लिए कोई भी ब्रांड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया पर होता है, और वो एक ऐसी जगह है जो आपको अलाउ करता है किसी की अटेंशन कैप्चर करने के लिए। तो अटेंशन अगर आपको किसी की मिल रही है तब उसको क्या बताओगे, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और आपने पूछा कि या yeah, सॉरी तनुश्री, no, go on. या आई वाज जस्ट सेइंग, आपने पूछा कि ऐप से कर सकते हैं या नहीं। आई रियली हैव टू चेक, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मेरे ख्याल से नहीं होता है, पर आप लिंक्डइन की ऐप से ट्राई जरूर कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ रियली बिग डील वैसे। Okay. Yeah. Um, so Krishna is asking, how can one gain relevant followers on Instagram? Okay. So कृष्णा, अभी हमने पीपीटी में एक सेक्शन ऐसा था जहां हम ये बात कर रहे थे कि आप उन राइट कनेक्शंस को ढूंढ कैसे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ट्वीट कर देती हूँ। तो एक तरीका ये है कि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को खोजिए जो आपकी तरह उस कॉज के लिए काम करते हैं। तो अगेन जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे एजुकेशन नॉन प्रॉफिट का, आप एक एजुकेशन नॉन प्रॉफिट के फाउंडर हैं, ऐसी ही कोई और भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो एजुकेशन के स्पेस में काम कर रही हैं। तो हम उनके पेजेस को देख सकते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके साथ कमेंट्स में एंगेज कर रहे हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि ओके ये इंसान जो है वो उसको एजुकेशन में या सोशल सर्विस में इंटरेस्ट है, तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपको कनेक्ट करना है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। दूसरा तरीका हमने बात किया था, आप हैशटैग्स के थ्रू ढूंढ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो नॉन प्रॉफिट है वो दिल्ली का है, तो आप अगर लिखेंगे हैशटैग एनजीओ दिल्ली, तो आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट दिखेंगे अलग अलग लोगों ने जो किए हैं। तो अगेन ये वो लोग हैं जिनको या तो एजुकेशन में इंटरेस्ट है या सोशल सर्विस में इंटरेस्ट है, और ये वो लोग हैं अगेन जिनसे आपको कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो आपके इनिशिएटिव से जुड़ने में भी इंटरेस्टेड होंगे। कृष्णा, आई होप आपको जवाब दिया होगा। So another question is that with an overconsumption of content and social media, and so that there's a decrease in the attention span of people. So how can one retain the attention span of people on their pages and social media profiles? तनुश्री, इज इट पॉसिबल कि मैं भी थोड़ा इंटरैक्ट कर पाऊंगी? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर किससे मैं बात कर रही हूँ। तो जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, दे कैन रेज देयर हैंड और आप उनको अनम्यूट कर दो। कैन वी डू दैट? Rhythm, you can just check the Q&A box. उसमें questions हैं नीचे, so you'll be able to. Can you view that? Yeah, questions I can see. I was preferring if I can actually talk to the person who is asking the question, है ना? Possibly हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं क्या? It's a webinar format. I don't think so we can do that. All right, Yeah. no worries. ओके, सो आप अटेंशन स्पैन की बात कर रहे थे कि अटेंशन स्पैन कम होता है, तो हाउ कैन वी मेक श्योर कि वो लोग हमसे जुड़े रहें, राइट? Yeah. ऑलराइट, सो आपने सही पॉइंट आउट किया, अटेंशन स्पैन लिटरली बहुत कम होता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बट द पॉइंट हियर इज कि अगेन एक तो आपको रेगुलर पोस्ट करना है ताकि आपके बारे में आपकी ऑडियंस को हमेशा एट द बैक ऑफ द माइंड याद रहे, आपकी जो रिकॉल वैल्यू है उनके दिमाग में वो बन जाए। और एक स्टेप आगे इसको अगर हम लेकर जाएं तो वो ये है कि कोशिश कीजिए कि अपने हर एक फॉलोअर से टाइम टू टाइम बात करते रहिए। जरूरी नहीं है कि आपको उनको नॉन प्रॉफिट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो जरूरी नहीं है कि आपको उनको हर समय ये बोलना है कि आप डोनेट कीजिए, नहीं। आप उनसे जेन्युइनली भी कुछ पर्सनली डीएम में कुछ शेयर कर सकते हैं विच इज अराउंड योर इनिशिएटिव, है ना। इट इज अबाउट देम जस्ट रिमेम्बरिंग यू।
तो अगर वो आपको आप उनको याद रहोगे तो पॉसिबिलिटी है कि लंबे समय तक वो आपके इनिशिएटिव से जुड़े भी रहेंगे। और जब जरूरत पड़ेगी, जब आप कोई कैंपेन चलाओगे, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि क्योंकि वो आप में ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपने टाइमली उनसे आप टच में रहे हो, तो वो आपके उस कैंपेन में डोनेट भी करें। Okay. Yeah. So Karan is asking like which medium is better? Is it LinkedIn or Instagram? Which social media platform is better for social? Karan, social enterprise, did you say? Yeah, like in general, which medium is better to share information, LinkedIn or Instagram? ओके करण, अगर आपका क्वेश्चन स्पेसिफिकली सोशल एंटरप्राइज से है तो आंसर स्लाइटली डिफरेंट है। मैं आपको दोनों क्वेश्चंस बता देती हूँ। तो जनरली एक प्लेटफॉर्म से काम नहीं चलता, बाकी लार्जली इट डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप वॉलंटियर्स खोज रहे हो या आपको सीएसआर से कनेक्ट करना आपका प्रायोरिटी है। तो लिंक्डइन के लिए जैसे हमने सीएसआर की बात की थी, तो बी इट नॉन प्रॉफिट, बी इट सोशल एंटरप्राइज, दैट इज वन प्लेटफॉर्म आई वुड रियली सजेस्ट यू टू बी देयर। जहाँ पे इंस्टाग्राम की बात आती है, वहाँ डिफरेंस ये आता है कि डिपेंड करता है कि आपका कोई ऐसा सोशल एंटरप्राइज है जो बिजनेसेस से डील करता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सोशल एंटरप्राइज जो अपने एनजीओ पार्टनर्स के थ्रू ऑन ग्राउंड ऑपरेट करता है, राइट? तो उस केस में उस सोशल एंटरप्राइज को डायरेक्टली वॉलंटियर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको एनजीओस जो है वो ऑडियंस है उसके लिए, राइट? तो उस केस में अगर आप इंस्टाग्राम नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। पर अगर आप क्राउड फंडिंग के लिए या फिर आप वॉलंटियर ढूंढने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, अगेन डिपेंड्स कि आप किस टाइप के वॉलंटियर्स खोज रहे हैं। तो जैसे वाईएफ का एग्जांपल मैं आपको दे रही थी, तो वो एक यूथ पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूथ को पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो मीन्स उनको यंग लोगों से कनेक्ट करना जरूरी है। और इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको उस तरीके की ऑडियंस बहुत मिलेगी, राइट? पर वहीं कोई ऐसा एंटरप्राइज है कोई ऐसा नॉन प्रॉफिट है जिनकी ऑडियंस जो है वो अधेड़ उम्र के लोग हैं। मान लीजिए मेरी मामा के एज के लोग हैं, विच इज लाइक सम 50 टू 80 के बीच में। तो मेरी मामा डजंट यूज इंस्टाग्राम, लाइक पीपल दैट ही डजंट यूज इंस्टाग्राम, तो उस केस में प्रोबेबली व्हाट्सएप इज द प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप चूज करेंगे और आपको अल्टीमेटली सोशल मीडिया से चाहिए क्या। तो सोशल मीडिया पे होना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि सारे लोग करते हैं। सोशल मीडिया इसलिए करना है क्योंकि लिटरली वहां से आप जेन्युइनली वॉलंटियर्स या सीएसआर से कनेक्ट करके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, अपने इनिशिएटिव को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जी। So Olympica is asking that is there any specific time during the day, what's the best time in the day to post on social media? Is there any specific time or not? Okay. So time wise, again, it differs from different platforms to another. लिंक्डइन की मैं बात करूं तो आप जनरली इसका गूगल रिसर्च करेंगे तो पीपल विल टेल यू द बेस्ट टाइम इज बिटवीन 9 to 10 AM, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब लोग ज्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव होते हैं। इट्स अ स्टडी फाइंडिंग आप कह सकते हो। बाकी ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आपका बिल्कुल किसी प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं है, यानी आप इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट स्टार्ट ही कर रहे हो, देन यू हैव टू वेट टू सी कि कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो ये इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको कोई ना कोई इंसाइट मिल जाता है। once you are like active on some platform for 2 to 3 months, there is a column, there is inside का section in each platform which tells you कि कौन से time पे आपकी audience सबसे ज्यादा active होती है, and depending on that you can take it forward. Otherwise it is different from platform to platform, it is different from account to account. कोई standard time नहीं है. Okay. Yeah. So another question is that like on social media pages of social enterprises, the majority of the time the followers are inactive. So what strategies can one apply to improve this situation? कोई और इनएक्टिव है उसका आप नहीं कर सकते हो कुछ, पर
आप उन लोगों को जरूर खोज सकते हो जो कि एक्टिव हैं। जैसे लिंक्डइन पे स्पेसिफिकली मैंने आपको तरीका बताया था, जहाँ पे आपको किसी भी प्रोफाइल पे जाके उनका एक्टिविटी सेक्शन देखना होता है। तो अगर वो सेक्शन किसी की प्रोफाइल से गायब है, सो दैट क्लियरली मीन्स दे डोंट यूज लिंक्डइन डिस्पाइट हैविंग एन अकाउंट, राइट। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप एक हद तक पता लगा सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, वो कितना ज्यादा वो इंसान अपने कमेंट्स में इंटरैक्ट करता है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको देख के आपको पता चल जाता है कि कौन उस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है और कौन एक्टिव नहीं है। So Heath is asking, like, what are the best practices for non-profit social enterprises to use storytelling and social media to double the impact and convince the audience with their vision? Tanishri, can you repeat the question for me, please? Like, what are the best practices for non-profit social enterprises to use storytelling and social media to double the impact and convince the audience with their vision? Okay. So again, social media is a lot about experimentation. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी के लिए काम करते हैं, जो किसी दूसरे के लिए काम नहीं करती हैं, नो मैटर हाउ एग्जैक्टली यू इम्प्लीमेंट देम। और कुछ स्टैंडर्ड चीजों से आप शुरुआत जरूर कर सकते हो और ये देख सकते हो कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट में से कौन सी ऐसी 2-3 चीजें हैं जिससे आपको फायदा हुआ है। तो कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस इंक्लूड्स अगेन कि आपको रेगुलरली पोस्ट करना चाहिए। अगर कोई कमेंट में आपसे इंटरैक्ट कर रहा है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर मैक्स आप उनके सवाल का जवाब दे दें। और ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान डोनेट करने की कगार पे हो, उसने आपके मिशन के बारे में पोस्ट देखा, ही वांट्स टू डोनेट, और उसका कोई डाउट था जो उन्होंने आपसे इनबॉक्स में या फिर कमेंट में पूछ लिया। तो अगर आपने साथ के साथ उनका जवाब दे दिया, उनका ऑलरेडी माइंडसेट है वो जाके डोनेट कर देंगे। पर ये हो सकता है कि अगर आप इसी प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम डालेंगे तो फॉर सम रीजन कल को वो डोनेट ना कर पाए। सो इसलिए टाइमली रिप्लाई करना एक बहुत ही छोटी छोटी चीज लगती है, बट बहुत ही मेजर चीज है जो पूरे सोशल मीडिया को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करती है। सो दैट इज अनदर। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मतलब आप किस तरीके से अपने ऑडियंस से बात करते हैं। मतलब ऐसा भी होता है, ये अब तो ब्रांड्स की बात करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दे आर बिकमिंग अवेयर। पहले ये बहुत कॉमन था कि अगर कोई भी इंसान कंप्लेंट डालता है सोशल मीडिया पे किसी भी चीज से रिलेटेड, तो लोग उसको डिलीट कर देते थे। वो नहीं करना चाहिए। अगर आपके डोनर या आपके वॉलंटियर की तरफ से कोई कंप्लेन आपको आया है तो ये मत सोचिए कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। कोशिश कीजिए कि पोलाइटली उससे उनकी सिचुएशन पूछिए, उनके ग्रीवेंस को सॉल्व कीजिए। उससे इनफैक्ट लोगों में आपका ट्रस्ट बनेगा। दे एक्चुअली नो ओके यू केयर, राइट? यू नॉट जस्ट रनिंग अवे और यू नॉट डिलीटिंग द कमेंट जस्ट बिकॉज इट इज नेगेटिव। दैट इज अनदर थिंग यू कैन कीप इन माइंड। और बाकी जहां तक कंटेंट की बात है, हमने कुछ कंटेंट एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिए। अगेन यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू सी व्हिच वन वर्क्स फॉर यू, व्हिच डजंट। देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर टू दैट। Okay. Vishwesh is asking how much graphics and photographs are important in storytelling. What about using a podcast in Instagram storytelling? Okay. फोटोग्राफ्स आप अपने आप से 1 मिनट के लिए पूछ के देखो। मतलब आप किसी भी सोशल मीडिया पे जब इंटरैक्ट करते हो, व्हाट इज दैट वन थिंग जिस पे आपका ध्यान जाता है। मतलब where is my phone? If I literally do it, so this is the phone. When you like interact on any social media, just do like this. आप scroll करते हो। There are very less time that you stop and you read something on social media. Hence picture, right? तो इसलिए पूरे स्टोरी टेलिंग में yes pictures are important, yes videos are better again, क्योंकि again that's a visual element और वो एक ऐसी चीज है जो आपको रुक के देखनी पड़ेगी। फोटो भी आप you just skim जल्दी जल्दी।
photo mein you're listening, you are watching, so that captures your attention more. Podcast is definitely one thing. To be very honest, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा experience नहीं है, मैंने खुद ये चीज़ try नहीं करी है, but I'm observing there are a lot many people in today's time who are coming up with podcast. पर podcast के लिए फिर आपको सही platform ढूंढने की जरूरत है, right? जैसे Spotify है, या फिर आपको वो audience ढूंढने की जरूरत है जो actually सुनने में वो interested होगी, या YouTube probably is one channel जहाँ पे आप अपना जो podcast है वो launch कर सकते हो. Instagram probably won't be a best platform for a podcast. Yeah. So we have exceeded the time. So this is the last question I'm picking up. So Roshni is asking, is it okay to share cause-related topics, WhatsApp forwards, videos, etc. on an organization page on LinkedIn? I guess it is. मतलब इसमें generally it's a debatable topic, to be honest. I had this question very often when I was working with different non-profit organizations, and there is no wrong or right side to it. It's just a perspective, and in my perspective, it is definitely fine. पर इतना जरूर आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने initiative को dissolve ना करें. मतलब it is perfectly fine that you're talking about education in general, but it is also important that you be able to somehow connect that general news with the initiative that you run, right? So wo balance is what is important. Otherwise, there is no harm at all. It is about the cause you care about. So yeah. Okay. अच्छा, we're just taking one last question. उसके बाद we'll wrap up. So Nivedita is asking that you've spoken about personal LinkedIn, but how can one create pages for non-profits and manage those better? So वहाँ पे मेरा आपको सजेशन यही था कि आप पेज पे मेहनत लगाओ, उससे बेटर है कि आप अपने प्रोफाइल पे मेहनत लगाओ. वो मैं आपको I'll try to explain it from both technical and non-technical perspective. So technical perspective का ये है that for some reason LinkedIn doesn't really promote pages of any organization. As in उसका जो reach होता है, आपने अगर LinkedIn यूज किया है तो आप देखते होंगे कि आपका जो पोस्ट है, चाहे वो आप पर्सनल पे करें या पेज पे करें, तो उसके एक नंबर ऑफ व्यूज होते हैं कि ये जो पोस्ट है वो इतने लोगों ने देखा, राइट? फॉर सम रीजन जो पेज का विजिबिलिटी है एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट इज लेस ऑन अ पेज. सो दैट इज वन टेक्निकल रीजन व्हाई आई एम सजेस्टिंग गो फॉर अ प्रोफाइल. Another reason for the bigger reason for maintaining your profile is कि LinkedIn प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन कनेक्शंस, है ना? आप जितना जेन्युइनली सोशल मीडिया पे सामने वाले को ये बताओगे कि हाँ मैं एक इंसान हूँ, वो उतना ही कंफर्टेबल होके आपसे बात करेगा. जितना ही आप फॉर्मल होकर उनको एक लाइन में जवाब दोगे या फिर अपने टाइपोस की चिंता करोगे कि मैंने टाइपो कर दिया, दिस इज अनप्रोफेशनलिज्म, उतना ही वो आपसे दूर भागेगा. बिकॉज इट इज आप जस्ट आई वुड जस्ट गो इन अ रेट्रोस्पेक्टिव, है ना? कि कोई भी ब्रांड आपसे बात करता है, व्हाट डू यू लाइक, आपको अक्सर हमें ऐसा नहीं लगता कि सामने कोई मशीन बैठी है, राइट? तो वो मशीन वाली फीलिंग नहीं देनी है, इंसान वाली फीलिंग देनी है. और खासकर अगर आप एक नॉन प्रॉफिट हो, आप एक सोशल एंटरप्राइज हो, तो आपको डेफिनेटली एक इंसान वाली फीलिंग देनी है ना? इस सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज एनी नॉन प्रॉफिट और सोशल एंटरप्राइज फेस इज ऑफ ट्रस्ट. और मशीन के साथ आप वो ट्रस्ट नहीं बना सकते, इंसान के साथ बना सकते हो. दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट बिफोर पीपल डोनेट दे वांट टू विजिट दैट पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट, है ना? ऑनलाइन लोग भरोसा करते भी नहीं है इतनी जल्दी. तो इसलिए अगर आप प्रोफाइल से इंटरैक्ट करोगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पोस्ट. हो सकता है वो इंसान आपको पर्सनल मैसेज में आपसे बातचीत करना चाहे. इन दैट केस ही एटलीस्ट नो कि कोई इंसान है, मैंने इस इंसान के बारे में पढ़ा है, मुझे इस इंसान के बारे में कुछ पता है, राइट? अगर आप प्रोफाइल से इंटरैक्ट करते हो, सो दैट्स वेयर इट बिल्ड्स रिलेशन. पेजेस आर काइंड ऑफ टेक्निकल, वो रिलेशनशिप नहीं बनता है. दैट्स अ नॉन टेक्निकल साइड ऑफ इट. दैट्स हाउ एटलीस्ट आई थिंक why you should go for a profile rather than a page. Yeah. Okay. So now, as we come to the end of this workshop, I would firstly like to thank Rhythm for taking out her time from her busy schedule and conducting such an insightful and interactive workshop.
I'm very sure that each and every one of us present here learned something from this workshop on how to effectively leverage social media and how to use storytelling to create a powerful narrative, and how to ensure maximum engagement with your audience. Secondly, Tanushree, I'll just okay, I'm so sorry. Just complete. Just give me 2 minutes at the end, no? yeah, Just two yeah, minutes. I'll wrap it up. sure. So Please go ahead. I just have to say bye. Yeah. okay, no problem, no problem. And secondly, I would like to thank Anubha and the team UNV for helping us conduct this workshop. And if you want to engage with the UN volunteers on a regular basis, you can do so by joining the WeForce. Um, it's their group of online volunteers. My colleague had just shared their email ID with you in the chat box. Also, if you are interested in being part of the MASH initiatives we are hiring right now, you can join us as a volunteer. And in the chat box, we have sent you the website link of our website page. And lastly, I would like to thank all of you, all the attendees who took out their time from the busy schedule. And I hope you all enjoyed the workshop and definitely learned something. And I would thank you guys for being super patient in spite of the major technical issues we faced today. I just request all of you to take out some time and fill the feedback form. It's there in the chat box, and you can also scan the QR code that's on the screen. We also share the feedback forms in the emails after this workshop. And please let us know how did you like the workshop, and if you have any suggestions for us for the future workshops, please put that in the feedback form. Thank you. Rhythm, you can take it up now. Thank you, Tanushree. I actually just want to say bye. And last thing, I'm sure कि आपके कुछ ना कुछ questions होंगे जो अभी शायद नहीं resolve हो पाए हैं, या later any time when you feel you need to kind of get in touch. I'm available at both these places. आप मुझे LinkedIn पे खोज सकते हो, या फिर you can write to me at letskaizen@gmail.com, and I'll be more than happy to be in touch. And again, I'm really sorry about the technical issue we faced. It was just because of the electricity. And thank you, Mash Protect. Thank you, Tanushree. Thank you, Rhythm. Thank you, everybody. Have a great weekend ahead. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.